آج کا جو موضوع ہے ڈائریکٹلی اس کے اوپر آتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آپ سب لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال سے متعلق۔ اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ ڈسکشن چل رہی ہے جو کہ چند شخصیات سے متعلق نہیں ہے، پوری ایک سوچ کی عکاسی اس کے اندر ہوتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ ایک ہفتہ پہلے عمران ریاض خان صاحب نے آؤٹ آف نو ویئر انجینئر صاحب کی 8 ماہ پرانی ایک ویڈیو کے اوپر ایک پورا ولاگ کھڑکا دیا، پورا ایک ولاگ کر دیا۔ اور عمران ریاض خان کے ولاگ کرنے کا مقصد یا مطلب صرف ایک ولاگ یا ایک ویڈیو والا معاملہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے نیچے والی پوری لاٹ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اور انجینئر صاحب کی ویڈیو کا جو میں نے ذکر کیا اس میں ان سے مجھے ایک گلا ہے، انہوں نے بار بار جو ہے وہ آفتاب اقبال کو ان کا استاد قرار دے دیا، حالانکہ مقام اور مرتبے اور جو ویورشپ اور جو باقی چیزیں ہیں جس سے میں نے کہا کہ ان کو فالو کرتے ہیں، آفتاب اقبال شاید ان سے 10ویں نمبر پہ بھی نہیں آتے ہیں، اور عمران ریاض خان ہی کو یہ سارے کے سارے لوگ فالو کرتے ہیں۔ اسی میں سے کچھ نہ کچھ کشید کر کے چیزیں آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسکلی تھاٹ لیڈر ان کا جو ہے یا وزیر اطلاعات جو آج کل ان کے ہیں یا ان کے ISPR آج کل جو ہیں وہ عمران ریاض خان ہیں۔ ان کی جانب سے ایک ویڈیو ہوئی 8 ماہ پرانی، اور اس کے اوپر آفتاب اقبال صاحب نے 2 ویڈیوز اور عمران ریاض خان صاحب نے ویڈیو، اور نیچے 3-4 اور لوگوں نے بھی بہت ساری فالو اپ ویڈیوز بنائی۔ اس کا بہت شافی قسم کا جواب انجینئر صاحب نے دیا ہے، جس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا وہ ضرور جا کے دیکھیں۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک نقطے کا انتہائی تسلی بخش جواب دیا گیا ہے عمران ریاض صاحب کے الفاظ میں۔ پہلی بار جو ہے وہ ٹکر کا بندہ ان کو ملا ہے، ایک پوائنٹ غلط ثابت کر دیا ہے، جو اس کے اندر ایک براڈر ڈسکشن اس میں سے نکلتی ہے۔ ڈائریکٹلی ذرا اس نقطے کی طرف چلتے ہیں جس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال۔ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ہم پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی ستائش اور بہت سے لوگوں کی گالیاں کھا چکے ہیں، ان کو ذرا رکھیں ایک سائڈ کے اوپر۔ آفتاب اقبال صاحب، محترم آفتاب اقبال صاحب، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کے لیے آپ نے بڑا خوبصورت شعر اس میں پڑھا، ابھی خیر آپ کا ذکر آتے ہی اور آپ کی ان ساری باتیں سننے کے بعد میرے ذہن میں بھی ایک شعر آ رہا ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکیہ داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ۔ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے تانے آپ اور انجینئر مرزا کو دے رہے ہیں، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ سے اور آپ کے اداروں سے اور آپ کا ان اداروں سے کیا کیا تعلق اور کیسے کیسے تعلقات رہے ہیں۔ خیر اس کے اوپر آتے ہیں۔ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ سے ایک تاریخی غلطی بلکہ حماقت سرزد ہوئی آپ ہی کے الفاظ میں، جس کے اوپر انجینئر مرزا صاحب کی بھی شاید نظر نہیں گئی، انہوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آرمی کا امیج کیسے بلڈ کیا جائے گا، اس کے اوپر آپ نے اپنی بڑی ایکسپرٹ اوپینین دی۔ آفتاب صاحب نے کیا فرمایا ذرا خود ہی ان کی زبان میں سنیں۔ آج میں اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انجینئر صاحب آپ کا فکرہ مستعار لیتے ہوئے وہ جو کعبے کی چھت سے متعلق آپ نے کہا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تب بھی یہ لاسٹ امیج ریٹریو نہیں ہو سکتا اگر ہمارے جرنیل اس چیز پر حلف بھی اٹھائیں کہ وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے، تب بھی یہ کام صرف 20% ہوتا ہے، 80% کام رہ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عمران خان کی انٹری ہوتی ہے۔ عمران خان اور اس کے سوشل میڈیا کو کم از کم 1 سال لگے گا اس کھوئے ہوئے امیج کو ریٹریو کرنے میں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں ان کی سوچ کا کہ اسٹیبلشمنٹ کا امیج PTI، عمران خان اور ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم ہی بہتر کر سکتی ہے۔ مطلب پورے کا پورا وہ جو بیانیہ ہے سول سپریمیسی کا، آئین کی بالادستی کا، فوج کے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا، وہ تو پھر یہاں پہ سارا وڑ جاتا ہے۔ آفتاب اقبال صاحب، آپ کا کیا تعلق ہے فوج کی امیج بلڈنگ کرنے سے؟ ان ادر ورڈز آپ یہاں پہ پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2018 کے بعد بلکہ 2014 کے بعد جس طریقے سے PTI کی سوشل میڈیا ٹیم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر تھے اور ایک دوسرے کی امیج بلڈنگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے، مل جل کے کام کر رہے تھے، 1 پیج تھا، آپ ایک بار پھر اس کا خواب سجائے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب وہ جو سارا انقلابی پن ہے، وہ جو سارا آپ کا نظریاتی پن ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں آپ کے پورے نظریے سے، آپ کے نیریٹو سے۔ اس ایک سٹیٹمنٹ نے، اس ایک تھاٹ نے آپ کے پورے دعوے کی، آپ کی پوری ڈاکٹرین کی، آپ کے پورے نیریٹو کی کلی کھول کے رکھ دی کہ آپ ایک بار پھر خواہش مند ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے میں اور ان کا امیج ٹھیک کرنے میں۔ ورنہ آپ کا اس بات سے تعلق ہے کہ فوج کا امیج بلڈ کریں، اور آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کا فوج کی امیج بلڈنگ سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ان ادر ورڈ آپ سمپلی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج نے اس وقت کسی اور کو گود لیا ہوا ہے، ان کو اپنی گود سے اتاریں اور آپ کو ایک بار پھر اپنی گود کے اوپر چڑھائیں، جس طرح پہلے انہوں نے اپنی گود پہ رکھا ہوا تھا، آپ کو پال رہے تھے، آپ کو پوس رہے تھے۔ آپ کو ان کے اس پورے ایکشن سے یا ان کے اس پورے طریقہ واردات سے اصولی اختلاف نہیں ہے، آپ کو صرف اختلاف یہ ہے کہ گود میں اس ٹائم کوئی اور ہے۔ گود میں تو آپ کو ہونا چاہیے، آپ بہتر خدمت کر سکتے ہیں، آپ بہتر امیج بلڈ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ فوج کے امیج کو آپ کی اور آپ کی پوری سوشل میڈیا ٹیم زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سرو کر سکتے ہیں، ان کی سروس کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آفتاب اقبال صاحب
जनाब आप, वरना कौन नहीं जानता कि आप टीवी, इंडस टीवी किस तरीके से लॉन्च हुए थे, ये किसके प्रोजेक्ट्स थे, ये किन किन ब्रिगेडियर्स को किस किस तरह के प्रेजेंटेशंस देते थे, फंडिंग किस तरह जारी होती थी, चैनल आगे कैसे चलता था। खैर वो तो कहानियाँ किस दिन मंजर यहाँ पे ज़रा खुल के सामने आई तो उस पर तो पूरी एक अलग से पॉडकास्ट हो सकती है और किसी एक्सपर्ट को ही बयान करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक तारीखी वाक़या ज़रूर आपको याद करवाना चाहता हूँ। आफ्ताब साहब को तो खैर याद हो गई, लेकिन उस तरीके से मंजर यहाँ पर आज तक ये वाक़या नहीं आया। हुआ कुछ यूँ कि 2008 और 2009 में जब ये तरसते थे इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी फ़र्द से ताल्लुकात बनाने में या उससे कायम करने में, हमारे दो दोस्त ज़रा सूट वगैरह पहन के आफ्ताब इकबाल साहब को मिलने उनके घर चले और आफ्ताब इकबाल साहब 45 मिनट तक उनको इस्टेब्लिशमेंट का और फ़ौज का या किसी एजेंसी का बंदा समझ के उनसे उसी तरीके से गुफ्तगू करते रहे और अपने ताल्लुकात गिनवाते रहे कि मेरे फ़लाँ सेक्टर से भी राब्ते हैं, मेरी फ़लाँ कोर कमांडर साहब से भी कोई राब्ते हैं, मेरी फ़लाँ रेजिमेंट में और फ़लाँ जब भी मेरे ये जानने वाले हैं, और MI के अंदर मेरा ये जानने वाला है, ISI के अंदर मैं ये जानने वाला है। बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर एक सिफली किस्म की गुफ्तगू वहाँ पर की और 45 मिनट तक अपने फ़ौज के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात गिनवाने के बाद उन्होंने जब पूछा कि अच्छा आप कौन सी एजेंसी से हैं, कि तो पता लगा कि वो किसी एजेंसी से नहीं है, वो आम सिविलियन है, वो आम सहाफ़ी दोस्त हैं जो उनसे मिलने गए हैं। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब को इस बात यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया और उनको वहाँ पे एक अजीमत उठानी पड़ी और महफिल बहुत जल्दी बर्खास्त हो गई। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपको लाहौर के बहुत सारे सहाफ़ी हैं स्पेशली जिन्होंने लास्टली इनके प्रोजेक्ट आप TV के अंदर काम किया है। ज़ाती चीज़ों के ऊपर तो खैर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो आपका ओवरऑल मजमूई इनकलाबी के तौर पर जो पेश कर रहे हैं उससे असल में चिड़ होती है। बहरहाल आफ्ताब इकबाल साहब ने इस पर 2 वीडियोज़ बनाई हैं और दूसरी वीडियो में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि नहीं वो गलत थे। इंजीनियर साहब जब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं कर रहे, उनका ये अपने ख्यालात हैं और बड़े आराम से कह के वो आगे निकल गए, लेकिन उनको इस बात पे कोई शर्मिंदगी या नदामत उनका इजहार नहीं किया कि मैंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करना या इस्टेब्लिशमेंट के कहने में कोई काम करना ये बहुत बड़ा वाक़या होता है और आपने दूसरी ही वीडियो में आके उसे रुजू कर ले कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जो पूरा बयानिया है और जो आपके कमेंट सेक्शन में और इमरान रियाज खान साहब की वीडियो में और उसके भी कमेंट सेक्शन में हज़ारों की तादाद में लोग कमेंट कर रहे हैं और ये बिलीव करते हैं आपके बहुत से लोग कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, जिसका आपको भी अब इदराक हो गया है, इमरान रियाज साहब को भी इदराक हो गया है, उनसे आई थिंक कोई कम्युनिकेशन भी हुई है और किसी न किसी हद तक उनको शर्मिंदगी भी है, शायद वो दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। और बहुत सारी बातें तो खैर वीडियो में मुकम्मल तौर पर पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह मैंने कहा कि वो गलत साबित कर दें, लेकिन ये जो नैरेटिव है कि आपके ख़िलाफ़ जो भी बात बयान करे या कोई भी ऐसा फ़र्द जो आपकी उस तरह से तारीफ़ ना करे जिस तरह आप चाहते हैं, वो या तो पटवारी है या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे काम कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये सरीहन बदयांती और एक अजीब किस्म का थॉट प्रोसेस है जिसका हमारे बहुत से लोग शिकार रहते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पसंद करने की बहुत सारी वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह हमारे नज़दीक ये है कि इंजीनियर साहब ऑडियंस साइज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, ऑडियंस लूज़ होने के खौफ से अपनी बात को नहीं बदलते। आपका ख्याल था कि बहुत सारे जो मोटिवेशन स्पीकर्स यहाँ पर रहे हैं, कोई क्रिकेटर यहाँ पर रहा है, कोई मजहबी लीडर यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोलने की गुस्ताखी की और उसके बाद से उनका वो मकाम भी शायद नहीं रहा, तो शायद इंजीनियर भी उनमें से एक बंदा होगा कि इसने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलने की गुस्ताखी की है, तो इनका अंजाम भी वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पर आप गलती पे हैं, यहाँ पर आपका जो पाला है वो एक गलत आदमी से पड़ा है जिसने पॉइंट टू पॉइंट आपका जवाब दे के मुकम्मल गलत साबित किया। कोई भी बंदा उन दोनों वीडियोज़ को कंपैरेटिव एनालिसिस कर ले। और यहाँ पर भी आपका बड़ा सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म है, मतलब ये जो आपका कहना है कि इतने मजालिम हो रहे हैं और कुफर और हक की इस जंग के अंदर बोल क्यों नहीं रहे, खामोश क्यों नहीं है, जो बंदा खामोश है बहुत बड़ा मुजरिम है और ये जो रियासत जो मजालिम कर रही है इसके खिलाफ जो बंदा भी खामोश है वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है और उसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कैंपेन और ट्रेंड्स भी देखने में आते हैं। तो इंजीनियर साहब जो है यहाँ पे ये सवाल उठाने में बड़े हक व जानिब हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। मौलाना तारिक जमील साहब की कोई वीडियो, कोई स्टेटमेंट, कोई तकरीर, वो भी इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, वो भी इमरान खान से मोहब्बत का दम भरते हैं। तो ये सारे के सारे मजालिम और स्टेट क्राइम्स और ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके मुताबिक हो रही हैं, मौलाना तारिक जमील साहब ने इस सिलसिले में कोई बयान दिया हो वो अभी तक आपकी गुड बुक्स के अंदर मौजूद है। तो ये किस किस्म की डायकोटमी है, किस किस्म की जो हिपोक्रेसी है। और इसी लाइन के और बहुत से लोग जो हैं वो खामोश हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही क्यों आपके अताब का निशाना बनते हैं? शायद इसलिए कि वो कड़वा सच बोलते हैं, सीधा सच बोलते हैं, बगैर लाग लपेट के बात करते हैं। इस सिचुएशन में जो है ना बेचारे उन लोगों की पोजीशन बड़ी नाजुक है जो कि मजहबी मामलात के अंदर अपनी तमाम तर रहनुमाई और मजहबी मामलात के अंदर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कंसल्ट करना और उनकी बात को सुनना पसंद करते हैं। और बहुत सारे रवायती उलमा इकराम से तंग आकर उन्होंने अपनी यहाँ पे जाय पना ढूंढी थी और इंजीनियर साहब की राय उनको बड़ी
पसंद आती है, अपने आप को स्टूडेंट्स गर्दान दे, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब की मोहब्बत भी उनके दिल में ठाठे मार रही है। तो उनकी पोजीशन जो है ना वो बड़ी एक सेंसिटिव सी हो जाती है और बड़ी नाजुक सी, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी साइड लें। और कभी कभी हम उनके साथ भी एम्पैथाइज होते हुए सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, हमें बहुत बदज़ौक समझते होंगे। आप शायद समझते हो कि यार ये किस किस्म के लोग हैं। आप में से बहुत से लोग हमें पटवारी समझते होंगे, आप में से बहुत से लोग नून लीग का हमायती या एस्टैब्लिशमेंट का टाउट शायद समझते हो। एम्पैथी अगर हम दिखाते हैं तो आपके साथ भी ज़रूर दिखाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस को ज़रूर समझेंगे, लेकिन यकीन जाने हम बिल्कुल भी बदज़ौक नहीं है। इमरान खान साहब का करिश्मा अपनी जगह पे, इमरान खान साहब के ऑरे से उसको 100% तस्लीम करते हैं। उस तरह का करिश्मा, उस तरह की कम्युनिकेशन स्किल, उस तरह का जो कॉन्फिडेंस है, उस तरह का जो ऑरा है, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल उसका इदराक है, उसके हम कदरदान है। लेकिन इन सारी चीज़ों का मुल्क चलाने से, रियासती मामलात से, एक स्टेट को रन करने से, गवर्नेंस से, गुड गवर्नेंस से, रियासती मामलात को समझने से, आगे चलाने से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका सबूत आपको 2018 से 2022 के दरमियान में बड़े आसानी से मिल सकता है। असल में अलमिया ये है कि 2018 से 2022 के दरमियान में होने वाली चीज़ों को कोई एनालाइज करना ही नहीं चाहता। अगेन असद उमर साहब की वो बात है कि जलसों वाला इमरान खान जो है ना वो अवाम को पसंद है। और ये मशवरा असद उमर साहब भी थे इमरान खान साहब देने वाले कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए जो है वो जलसे शुरू कर दें। जलसों वाला इमरान खान बड़ा पसंद है लोगों को, कि ललकरे मारता है, ललकारता है, लोगों को जो है वो खून गरमाता है, जज्बात गरमाता है, हाथ हिलाता है और बालों को लहराता हुआ अवाम के दरमियान आता है। अवाम उसके ऊपर टूटती है, सेल्फियाँ होती हैं, तालियाँ बजती हैं, पूरा का पूरा माहौल बनता है और वो रियासती इदारों की चीरा दस्तियों को बेनकाब करता है। लेकिन जो गवर्नेंस है, इस सारे का सारा जो आउटपुट है, आपको गवर्नेंस चाहिए, आपको हुकूमत चाहिए, वो जो 4 साल का 3 साल का पीरियड है उस दौरान में क्या क्या किया गया उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में क्या किया, आज का लाहौर कैसा है, उस वक्त का लाहौर कैसा था, पंजाब में क्या क्या कुछ हो रहा था, मरकज़ में क्या क्या कुछ हो रहा था, अमन व अमान की क्या सिचुएशन थी, करप्शन की क्या सिचुएशन थी, ब्यूरोक्रेसी की क्या सिचुएशन थी। खैर वो सारी एक अलग पूरा मौजू है। लेकिन अगेन मैं एम्पैथी शो करते हुए उनसे गुजारिश कर रहा था कि आप ज़रा इन खतूत के ऊपर भी सोचना शुरू करें। इमरान खान साहब का करिश्मा अपनी जगह पे और अपनी जगह पे कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सारे का सारा वजाहत अपनी जगह पे, उसका बिल्कुल एतराफ़ है। लेकिन मुल्क की बागदौड़ जब हमने उनके हवाले की थी तो वो बुरे तरीके से फेल हुए थे। और एक दूसरी गलत फहमी कि इमरान खान की हिमायत ना करने का या उनके कुछ पॉइंट से इख्तलाफ रखने का मकसद ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं, फिर नून लीग की सपोर्ट की जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक इंतहाई फ्लॉप जमात है, बिल्कुल उसकी नाकामी है, उसका जो घटियापन है, तमाम तरह करप्शन और बिल्कुल जो मिस मैनेजमेंट, मोरोसी सियासत, वो तमाम तरह बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, उनकी जो सियासत के अंदर बदमाशी हैं, उनका जो बहुत कुछ है वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके दरमियान में जो आप अपने आप को हल बना के पेश करते हैं, अपने आप को जो सोल्यूशन के तौर पर पेश करते हैं और अपने आप को मसीहा और बिल्कुल पाक साफ अपने आप को पेश करते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल बेनिफिशरी रहे हैं, आप उनके साथ काम करते रहे हैं, अभी भी आप लाइन में लगे हुए उनको खतूत लिख रहे हैं और आपके इस तरह के तर्जुमान उसी तरह के हल पेश कर रहे हैं कि इसका हल जो है वो कि पीटीआई की मीडिया टीम और पीटीआई और फौज एक पेज के ऊपर है, तब जाके फौज का इमेज ठीक होगा। आप लोग लाइन में लगे हैं भाई साहब, आप लोग जो है वो बारी के इंतजार में हैं। आपको सिर्फ ये बात पसंद नहीं आ रही कि दूसरा क्यों गोद में बैठा हुआ है, किसी दूसरे के सर पे जो दस्ते शफ़क़त है वो क्यों रखा गया। तो इस फ़र्क को मलहूज़ रखना बड़ा ज़रूरी है, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उन जैसे बहुत से लोग जो ना इस साइड की हमाकतों के साथ हैं ना इस साइड की बेवकूफ़ियों के साथ हैं। एक साइड के ऊपर पागलपन है और एक साइड के ऊपर बेवकूफ़ी है, दोनों में से किसी का इंतखाब ना करना। इसको अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होना कहें या पटवारी होना कहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। पिक्चर को ज़रा ब्रॉडर सेंस में परसीव करें, उनको समझें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तो यही हकीकत है। चाहे आपके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स जो भी, चाहे आप किसी की पसंदीदगी के अंदर आप पूरी पिक्चर ना देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होती हैं, लेकिन किसी शख्स की मोहब्बत में आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते चले जाते हैं और हक़ाइक़ का सामना नहीं करना चाहते। लास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मामले को जो है वो ओपन नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने दावत दी है, बल्कि आप ही की शायद आफ्ताब इकबाल साहब के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि वो मनाजरे के लिए या ऑनलाइन डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपकी तरफ से दी गई दावत आगे से एक्सेप्ट हो गई है, हूँ नसीहो ना इंजीनियर साहब के अल्फाज में। तो अब आपने भागना नहीं है, अब आप सामने आएँ और या तो माफ़ी मांगें या तो इस बात का खुला एतराफ़ करें कि आपने बदनीयती का मुजाहरा किया है, या फिर सहाफ़त इतनी है कि 8 महीने पुरानी वीडियो को आपने दोबारा से, और 8 महीने में बहुत कुछ हो गया, 26 नवंबर भी हो गया, बहुत सारे दीगर मामलात भी हो गए, और इस दौरान इंजीनियर मिर्ज़ा की बहुत सारी वीडियोज़ आपकी हिमायत के अंदर भी आई हैं, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक चलाई है, एक वीडियो बनाई है। और वैसे भी पाकिस्तान से बाहर रहते हुए आप में से बहुत से लोगों की मजबूरियाँ, कॉन्टेंट की तलाश उनको रहती है, और इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी नई खबर अब आ नहीं रही है, तो पुरानी कोई ना कोई चीज़ें निकाल के हारून रशीद साहब जो वो किताब खोल के बैठ गए, उसका चैप्टर बाय चैप्टर जो आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इमरान खान से मुतल्लिक कोई ना कोई खबर आपको देते रहेंगे तो इनके चैनल्स चलते रहेंगे, इनके डॉलर्स बनते रहेंगे। खबर कोई नहीं आ नहीं रही, ये खुद साख्ता स्टोरियाँ जो बनाए चले जा रहे हैं। ये वीडियो बना कौन लोग रहे हैं? वो लोग जो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं,
اس شخص کے خلاف جس کے اوپر 7 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے پاس بھی آپشن تھی کہ وہ ہجرت کر جائے, ملک چھوڑ جائے, ایک بہتر زندگی اختیار کر لے. اور آپ لوگ جو پہلی فرصت میں یہاں سے بھاگے ہوئے, آفتاب صاحب اپنا فارم ہاؤس سمیت یہاں سے بیچ کے, اپنے کاروبار بیچ کے پہلی فرصت میں یہاں سے نکلیں, کوئی قید و بند کی صحبتیں برداشت نہیں کی اور باتیں کر رہے ہیں آپ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جس کے اوپر 7 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. آزادانہ موومنٹ نہیں کر سکتے, جو صرف ایک دن کے لیے پبلک سیشن اپنا کر سکتے ہیں, اور وہ بھی پوری سیکیورٹی کے معاملات کر کے, اور پورے کا پورا خیر وہ کہانی آپ کے علم میں. تو ایسے شخص کے خلاف جب آپ لوگ ویڈیو بنائیں گے تو دوسری طرف کا موقف بھی آپ کو سننا پڑے گا. اور خیر حقائق اب بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. جو بھی شخص دونوں ویڈیوز کو تقابل کرے گا وہ پوری کی پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے دیا گیا چیلنج جو آگے سے قبول ہو گیا ہے, اس کی روشنی میں ہمیں دونوں فریقین ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے یا ایک پلیٹ فارم پہ کسی ویڈیو میں نظر آئیں گے یا نہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.